Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 4 by Green Apple. And here is your book, Computer Connect. Let's start chapter number 5, GUI Operating System Desktop Management. Let's move on to the introduction of the chapter. So, an operating system is a program that is first loaded on your computer system. Operating system क्या है? ये एक प्रोग्राम है जो कि पहले आपके कंप्यूटर सिस्टम में लोड किया जाता है व्हेन यू ओपन इट, जैसे हम उसे ओपन करते हैं। इट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ऑल अदर एप्लीकेशंस। ये क्या करता है? जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसे मैनेज करता है, दूसरे एप्लीकेशंस को मैनेज करता है, प्रोग्राम्स को मैनेज करता है हमारे कंप्यूटर में। Let's move on to the learning objectives of the chapter. So after learning this chapter, students will be able to know, they will know about Windows 10. Windows 10 क्या होता है? They will learn the features of Windows 10. They will learn to manage multiple Windows, कैसे अलग अलग Windows पे काम करना है। You will also learn to change the wallpaper. आप ये भी सीखेंगे कैसे हम चेंज कर सकते हैं wallpaper को। Now let's quickly move on to the conversation between Meera and Hina. So Meera says to her friend Hina that, hey Hina, do you know what an operating system is? क्या तुम्हें पता है operating system क्या होता है? तो Hina reply करती है, no Meera. What is it? क्या होता है ये? तो मीरा कहती है, an operating system is a special program. ये एक स्पेशल प्रोग्राम होता है for our computer, हमारे कंप्यूटर के लिए। It helps our computer to run smoothly. ये हमारे कंप्यूटर को हेल्प करता है स्मूथली रन करने में। And Windows 10 is one of them. और Windows 10 इनमें से एक है। हिना कहती है, I get it मीरा, so what can Windows 10 do? तो अच्छा, मुझे समझ में आ गया। अब ये बता दो Windows 10 क्या कर सकता है? तो मीरा ने कहा, well हिना, it performs all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and output devices etc. तो ये सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे। Now Hina says, great Meera, I am eager to learn more about it. तुमने बहुत अच्छे से मुझे समझाया, मैं इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहती हूँ। So the currently most widely used versions of the Microsoft Windows operating system worldwide is Windows 10. सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला जो वर्जन है Microsoft Windows का ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है Windows 10, जो कि रिलीज़ हुआ था 29 जुलाई 2015 को। The first GUI version of Windows was introduced in 1995. जो पहला वर्जन था GUI का वो 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था और उसको जो है Windows 95 के नाम से जाना जाता था। Windows has several distinct versions around the years. जैसे जैसे साल बीतते गए यहाँ पे Windows ने कई सारे जो है वर्जन्स को अपग्रेड किया, तो बहुत सारे वर्जन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें आपको मिलेगा Windows 8, Windows 7, Windows Vista जिसे हम Windows 2006 भी कहते हैं, Windows XP मिलेगा, Windows 98 मिलेगा, Windows NT मिलेगा। Windows 11 is the most recent versions of Windows operating system. So Windows 11 जो है वो सबसे ज़्यादा जो है आप कह सकते हो recent version है हमारे Windows system का, and it was released on October 5, 2021. 2021 5 अक्टूबर को ये रिलीज किया गया था। While previous versions of the Windows were mainly designed to run on the desktop and laptop computers, Windows 10 is also designed to run on the tablets. तो जो पहले के वर्जन्स थे वो जो है डेस्कटॉप पे चलते थे, वो लैपटॉप्स पे चलते थे, लेकिन ये जो Windows 10 है ये हमारे टैबलेट्स पे भी चल सकता है, इसलिए इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है। Now let's learn about the need of Windows. Windows की क्या ज़रूरत है, क्या नीड है। So an operating system is a system software. Operating system एक system software है जो क्या करता है, एक्ट करता है as an interface, एक इंटरफेस के रूप में काम करता है बिटवीन किसके, यूज़र और हार्डवेयर के। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल द हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जितने भी हार्डवेयर्स है, जितने भी सॉफ्टवेयर्स है, उन सबको मैनेज करने का काम करता है। विदाउट इट द कंप्यूटर वॉन्ट बी एबल टू वर्क प्रॉपरली, और बिना इसके कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर सकता। इट कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिएशन, डिलीशन,
कॉपी एंड स्टोरेज ऑफ फाइल्स। इसमें आपको जो है ट्रैक दिखेगा इन्फॉर्मेशन का, जिसमें आपको क्रिएशन आप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं फाइल्स को। लेट्स मूव ऑन टू द फीचर्स ऑफ विंडोज 10। विंडोज 10 के क्या क्या फीचर्स हैं? सो विंडोज 10 ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ न्यू फीचर्स। ये जो है बहुत सारे न्यू फीचर्स हमें देता है विच मेक इट यूजर फ्रेंडली, जो इसे यूजर फ्रेंडली बनाता है, एंड ईजी टू यूज एज कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस वर्जन। और ये काफ़ी ज़्यादा आसान है यूज़ करना अगर हम इसको इसके प्रीवियस वर्जन से कंपेयर करें। सो फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ विंडोज 10। ये कुछ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है विंडोज 10 के जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं। तो क्या है ये फीचर्स? लेट्स सी। तो पहला फीचर है विंडोज 10 हैज़ री इंट्रोड्यूस अ मोर ट्रेडिशनल स्टार्ट मेन्यू। यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल स्टार्ट मेन्यू मिलेगा आपको, जिसमें क्या होगा, इट हैज़ अपडेटेड द ग्राफिक्स। यहाँ पे आपको ग्राफिक्स अपडेटेड मिलेंगे एंड वी कैन टर्न टू फुल स्क्रीन ऑप्शनली, और हम यहाँ पे फुल स्क्रीन को जो है ऑप्शनली जो है टर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉर्टाना इज अ न्यू फीचर ऑफ विंडोज 10। कॉर्टाना जो एक नया फीचर है विंडोज 10 का, एंड ये क्या है, ये एक वर्चुअल असिस्टेंट है, जैसे कि सीरी हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया एंड एलेक्सा। We can use it to set reminders, get weather forecasts, send an email, find files, search the internet and so on. तो इन सब चीज़ों में, इन सब चीज़ों के इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मिलेगा इट इज़ बंडल विथ न्यू एंड इम्प्रूव्ड वेब ब्राउज़र। यहाँ पे एक आपको नया और इम्प्रूव्ड वेब ब्राउज़र मिलेगा जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ हुआ करता था, अब माइक्रोसॉफ्ट एज आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, सिक्योर है एंड इसमें आपको बहुत सारे नए नए फीचर्स मिलेंगे अगर हम इसे कंपेयर करें इसके पुराने ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर से। विंडोज़ 10 जो है हमें ऑफर करता है बहुत सारे फीचर्स वर्चुअल डेस्कटॉप के एंड एन ईजी टास्क व्यू टू स्विच अमंग टैब्स। यहाँ पे आपको एक बहुत ही आसान टास्क व्यू मिलेगा जिसमें आप ऐप्स के बीच में जो स्विच कर सकते हैं, टैब्स के बीच में स्विच कर सकते हैं एंड क्लस्टर जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्योंकि मल्टीपल विंडो का फीचर मिलेगा, एक समय में आप कई सारे विंडोज़ को ओपन कर सकते हैं और जो क्लस्टरिंग है वो अवॉइड की जा सकती है। लेट्स मूव ऑन टू नो द फैक्ट। सो वी कैन एक्सेस मल्टीपल विंडोज़ विथ द यूज़ ऑफ विंडो प्लस टैब बटन। विंडो के साथ अगर हमने टैब बटन को प्रेस किया तो क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे विंडोज़ को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। नाउ विंडोज 10 अलाउज यूजर टू स्विच बिटवीन टैबलेट मोड एंड डेस्कटॉप मोड। अब विंडोज 10 में आपको दो मोड्स मिलेंगे, टैबलेट मोड और डेस्कटॉप मोड, दोनों के बीच में आप इजीली स्विच कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर प्रोवाइड्स अस अ बंडल ऑफ अपडेटेड ऐप्स। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर मिलेगा यहाँ पे आपको, जिसमें आपको बहुत सारे अपडेटेड ऐप्स मिलेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे वीडियोस, म्यूजिक, मूवीज, फोटो, मैप, मैसेजिंग, मेल, कैलेंडर, ये सारे ऐप्स दिखाई देंगे। स्नैप असिस्ट इज द न्यू फीचर। ये एक नया फीचर है यहाँ पे जो कि हमें हेल्प करता है टू रीऑर्गेनाइज स्क्रीन स्पेस टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट, जिसकी मदद से हम जो स्क्रीन स्पेस को जो है रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू टेक टिप्स। सो व्हेन यू स्नैप वन ऑफ द ओपन विंडोज ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे अगर कोई भी विंडो खुला है उसको हम अगर स्नैप करते हैं तो क्या होता है, जो स्नैप असिस्ट है वो डिस्प्ले करता है एक थंबनेल ऑफ द अदर ओपन ऐप्स, जो दूसरे ऐप्स ओपन है उसका एक थंबनेल दिखाएगा। दैट कैन बी स्नैप्ड इन द अनयूज स्पेस, जिन्हें हम स्नैप कर सकते हैं अनयूज स्पेस में, एंड यू कैन यूज बोथ विंडोज साइमल्टेनियसली, और हम दोनों ही विंडोज़ को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। Now let's learn about the basic components of Windows Desktop। क्या क्या अलग अलग components हैं यहाँ Windows Desktop के। So जो Windows Desktop है ये जो है मेन स्क्रीन होता है, यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं स्टार्ट मेन्यू को, टास्क बार को एंड दूसरे आइकन्स को। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। Windows 10 में आपको मिलेगा एक सर्च बॉक्स, कहाँ पे रहता है, ये टास्क बार में रहता है, जहाँ से हम ब्राउज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के और वेब के जो है चीज़ें हमें चाहिए वो सारी चीज़ें हम यहीं से सर्च कर सकते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा स्टार्ट बटन, ये जो पार्ट है ये है हमारा सर्च बॉक्स, जहाँ से हम अपने कंप्यूटर की चीज़ों को प्लस वेब की चीज़ों को हम ढूंढ सकते हैं। ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, इतनी लंबी सी लाइन, दिस इज योर टास्क बार, एंड ये जो पार्ट है ये है आपका नोटिफिकेशन एरिया। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू टेक टिप्स। So the small pictures or graphics on the desktop that represent an application or program are called icons. जो छोटे छोटे पिक्चर्स हमें दिखाई देते हैं अपने डेस्कटॉप पे, जो कि क्या बताते हैं, किसी एप्लीकेशन के बारे में या प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू स्टार्ट मेन्यू। सो दिस इज लोकेटेड एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडोज 10। ये जो है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में मिलेगा आपको विंडोज 10 के, एंड इट इज़ द प्लेस वेयर वी कैन सर्च फॉर एनी एप्लीकेशन। ये वो जगह है जहाँ पे हम किसी भी एप्लीकेशन के लिए सर्च कर सकते हैं। व्हेन वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, जैसे ही हम क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पे बॉटम लेफ्ट में हमारे स्क्रीन के, वी गेट 2 पैनल्स, हमें 2 पैनल्स यहाँ पे मिलते हैं साइड बाय साइड। तो 2 पैनल्स हमें मिलेंगे। पहला पैनल आप देख सकते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट पैनल, एंड ये है हमारा सेकेंड पैनल। The left column displays the pinned, recently added and the most used apps. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, पिन्ड ऐप्स मिलेंगे, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले ऐप्स मिलेंगे, और रिसेंटली यूज़ किए जाने वाले ऐप्स मिलेंगे। अगर हम बात करें राइट पैनल की, राइट कॉलम की, तो यहाँ पे आपको जितने भी लाइव टाइल्स हैं वो दिखाई देंगे, जिन्हें हम कस्टमाइज कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं और रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या हैं, ये टाइल्स कहलाते हैं। इन्हें हम अपने हिसाब से रीसाइज, रीऑर्गेनाइज या फिर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नो द फैक्ट। सो लाइव टाइल्स डिस्प्ले अपडेटेड इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ द ऐप आइकन्स। ऐप के आइकन की जगह ये क्या करते हैं, अपडेटेड इंफॉर्मेशन हमें दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेदर टाइल को जो है देखें, तो ये जो अभी का जो करंट वेदर है वो हमें शो करेगा हमारे लोकेशन के अकॉर्डिंग। अगर हम मेल टाइल को देखें तो ये रिसेंट जो भी मेल है, मैसेजेस हैं, उनको शो करेगा। और अगर हम कैलेंडर टाइल की बात करें तो ये हमें जो है अपकमिंग इवेंट्स शो करेगा। नेक्स्ट कम्स द टास्क बार। सो दिस स्ट्राइप along the bottom of the screen displays the icons for each running apps. ये क्या है, ये जो आपको नीचे की तरफ दिखेगा आपके स्क्रीन के, इसमें आपको बहुत सारे रनिंग ऐप्स दिखाई देंगे। इट डिस्प्लेज द स्टार्ट बटन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन दिखेगा एकदम से लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट टू द स्टार्ट बटन इज द सर्च बॉक्स। अब स्टार्ट बटन ये रहा आपको, अब इसके बगल में जस्ट आपको सर्च बॉक्स मिलेगा, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम ब्राउज कर सकते हैं दोनों ही इंफॉर्मेशन को जो हमारे कंप्यूटर में सेव है या फिर जो वो वेब में सेव है। टू द राइट ऑफ द सर्च बॉक्स, अब अगर हम सर्च बॉक्स के राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा टास्क व्यू बटन। तो ये जो बटन दिख रहा है आपको, ये टास्क व्यू बटन है। ये जो टास्क बार है इसमें आपको मिलेगा नोटिफिकेशन एरिया, कहाँ पे, राइट साइड में। तो जैसे ही हम राइट साइड में जाएंगे तो हमें ये नोटिफिकेशन एरिया दिखेगा, जिसमें आपको एक क्लॉक दिखेगा, ग्रुप ऑफ दूसरे आइकन्स दिखेंगे। अब ये जो आइकन्स हैं ये डिस्प्ले करते हैं क्या, स्टेटस या फिर नोटिफिकेशन हमारे प्रोग्राम का, दैट आर रनिंग ऑन अ कंप्यूटर, जो कि हमारे कंप्यूटर में चल रहे हैं। एग्जाम्पल है नेटवर्क कनेक्टिविटी, बैटरी स्टेटस, वॉल्यूम, वन ड्राइव एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ मिलेंगी हमारे टास्क बार में। फिर आते हैं हमारे आइकन्स। आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर्स। ये छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी फाइल, फोल्डर या फिर ऐप्स को। दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। इनका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम GUI की बात करें, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है, एंड ये जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है। नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द कॉमनली यूज आइकन्स। आप कुछ कॉमनली यूज आइकन्स यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले आता है दिस PC। ये आपको आइकन दिख रहा है, ये क्या करता है, हमें इट गिव्स यू अ व्यू ऑफ द अवेलेबल ड्राइव्स। जितने भी ड्राइव्स हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। कंटेंट जो है जो भी स्टोर है हमारे कंप्यूटर में वो हम यहाँ पे देख सकते हैं।
अगर हम किसी भी ड्राइव पे डबल क्लिक करते हैं तो क्या होगा, जो भी फाइल्स और फोल्डर्स उस ड्राइव में वो हमारे सामने आ जाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट एप्लीकेशन आइकन्स। ये जो हैं दीज आर द ग्राफिकल इमेजेस दैट गिव अ क्विक एक्सेस टू द रिलेटेड एप्लीकेशंस। ये जो है ग्राफिकल इमेजेस हैं जो हमारे रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं उनको एक क्विक एक्सेस देते हैं। फिर आता है हमारा शॉर्टकट आइकन। ये जो शॉर्टकट आइकन है इट इज़ एन आइकन कंटेनिंग अ डायरेक्ट रूट। ये एक आइकन है जिसमें जो आपको डायरेक्ट रूट मिलेगा एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट या फिर फोल्डर को, एंड इसमें आपको जो है छोटे छोटे जंप एरोज मिलेंगे लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे। फिर आता है हमारा डॉक्यूमेंट आइकन्स। ये जो है एक्टिव डॉक्यूमेंट विंडो है हमारे एप्लीकेशन का, जिसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं टू अ डॉक्यूमेंट आइकन एंड विच गेट्स प्लेस्ड ऑन द टास्क बार, जो कि हमारे टास्क बार पे हमें दिखाई देगा। हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट विंडो में, कैसे, क्लिक करके डॉक्यूमेंट आइकन पे फिर से। नेक्स्ट नेटवर्क मिलेगा हमें, ये हमें हेल्प करता है एक्सेस करने में शेयर्ड फाइल्स को, डिवाइसेस को अलग अलग कंप्यूटर्स पे हमारे नेटवर्क में। फिर आता है हमारा रिसाइकल बिन। ये जो रिसाइकल बिन है ये एक फोल्डर है जिसमें आपको जो भी डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स है वो दिखाई देंगे। ये जो डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स हैं ये जो है या तो हम रीस्टोर कर सकते हैं, अपने ओरिजिनल लोकेशन पे चले जाएंगे रीस्टोर करने पे, या फिर हम इन्हें परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं अपने सिस्टम में से। नेक्स्ट कम्स लॉन्चिंग एन एप्लीकेशन। कैसे हम एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं? सो टू लॉन्च एन एप्लीकेशन फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। अब स्टार्ट मेन्यू की मदद से हम कैसे एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे? वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना होगा। पहला स्टेप कहता है हमें जो है स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, जो कि टास्क बार पे दिख रहा है। ये रहा हमारा स्टार्ट बटन। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे क्या होगा, एक मेन्यू हमारे सामने खुल के आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पे हमें कहाँ जाना है? ऑल एप्स बटन पे जाना है, एंड जो कि हमें दिखेगा बॉटम पे हमारे स्टार्ट मेन्यू के, यहाँ पे एक लिस्ट खुल जाएगी ऐप्स की जो भी स्टोर होते हैं इसमें कंप्यूटर में, एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। आप देख सकते हैं ST, तो ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये लिस्ट पूरी खुल जाएगी। अब जो भी हमें यहाँ से ऑप्शन चाहिए उसको हम स्क्रॉल करके फाइंड आउट कर लेंगे एंड उस एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। सो जो एप्लीकेशन विंडो है वो अब हमारे सामने आ जाएगी स्क्रीन पे, एंड इट्स आइकन इज डिस्प्लेड ऑन द टास्क बार। उसके जो भी आइकन्स है वो टास्क बार में आपको दिखने लगेंगे। नेक्स्ट कम्स पिनिंग प्रोग्राम्स टू द स्टार्ट मेन्यू। कैसे हम स्टार्ट मेन्यू में प्रोग्राम्स को पिन कर सकते हैं ताकि वो हमें इजीली मिल जाए। सो पिनिंग अ प्रोग्राम टू द स्टार्ट मेन्यू क्रिएट्स अ शॉर्टकट फॉर द एप्लीकेशन। सो जो भी एप्लीकेशन है उसका एक शॉर्टकट वहाँ पे बन जाता है, वहाँ से हम ईजिली, हम कहीं और ढूंढने की जगह वहाँ से हम ईजिली उस ऐप को उठा सकते हैं। सो दिस शॉर्टकट इज इन द फॉर्म ऑफ द टाइल इन द टाइल लिस्ट। ये जो शॉर्टकट है टाइल के रूप में होता है, टाइल लिस्ट में, टू द राइट ऑफ द स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू के राइट में। अब यूजिंग दिस शॉर्टकट, इस शॉर्टकट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ओपन द एप्लीकेशन ईजिली। एप्लीकेशन को हम बहुत आसानी से ओपन कर सकते हैं एक ही क्लिक के साथ। वी डू नॉट नीड टू सर्च फॉर इट और स्क्रॉल थ्रू द ऑल एप्स लिस्ट। हमें जो है इसमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है या ऑल एप्स लिस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स to pin a program to the start menu, and these steps are as follows। सबसे पहले हमें स्टार्ट पे जाना है, ऑल एप्स पे क्लिक करना है। नेक्स्ट a list of the applications will be displayed on the screen। एक लिस्ट दिखेगी आपको एप्लीकेशंस की आपकी स्क्रीन पे। फिर हमें क्या करना है? हमें सिलेक्ट करना है एप्लीकेशन को जिसे हम पिन करना चाहते हैं अपने लिस्ट में। तो हमें क्या करना होगा? उस एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है पेंट पे जो है क्या किया है? राइट क्लिक किया है, एंड ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे। सेलेक्ट द पिन टू स्टार्ट ऑप्शन। ये जो पिन टू स्टार्ट ऑप्शन है इसे हमें सेलेक्ट करना है इस मेन्यू में से। अब जो भी एप्लीकेशन हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो हमारे स्टार्ट मेन्यू में पिन हो जाएगा एज अ टाइल फॉर्म। लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी 1। पिन द MS PowerPoint and Word 2016 टू द स्टार्ट मेन्यू। आपका ये होमवर्क है जिसमें आपको MS PowerPoint को और Word 2016 को अपने स्टार्ट मेन्यू में पिन
करना है। नेक्स्ट कम्स अनपिन प्रोग्राम। अब हमने पिन करना तो सीख लिया, अब हम प्रोग्राम को अनपिन कैसे करें, मीन्स कोई प्रोग्राम है वो हमें रिमूव करना है वहाँ से, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सो टू अनपिन अ प्रोग्राम, अगर आप किसी प्रोग्राम को अनपिन करना चाहते हैं आपको राइट क्लिक करना होगा उस प्रोग्राम पे जाएं, राइट क्लिक करें स्टार्ट मेन्यू में जाके, और जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, यहाँ से हमें अनपिन फ्रॉम स्टार्ट इस ऑप्शन को चूज करना है। तो क्या होगा, इसके बाद वो प्रोग्राम वहाँ से हट जाएगा, अनपिन हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू टेक टिप्स। सो यू कैन ऑल्सो पिन अ प्रोग्राम एज अ टाइल बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग इट टू द टाइल सेक्शन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू। हम जो किसी प्रोग्राम को पिन कर सकते हैं टाइल के फॉर्म में, उसको ड्रैग और ड्रॉप करके, कहाँ से, टाइल सेक्शन से स्टार्ट मेन्यू के। नेक्स्ट रीसाइजिंग टाइल्स, टाइल्स को हम कैसे रीसाइज कर सकते हैं। सो वी कैन ऑल्सो रीसाइज द टाइल्स अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। हम टाइल्स को अपने अकॉर्डिंग जो है रीसाइज कर सकते हैं। टाइल्स आर जनरली अवेलेबल इन 4 डिफरेंट साइजेस, ये अलग अलग 4 साइजेस में हमें मिलते हैं, विच आर स्मॉल, मीडियम, वाइड एंड लार्ज। तो ये अलग अलग 4 साइजेस हैं। टू रिसाइज अ टाइल फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर आप टाइल्स को रिसाइज करना चाहते हैं तो ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है टाइल पे और सिलेक्ट करना होगा वहाँ से रीसाइज ऑप्शन को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रीसाइज ऑप्शन आ रहा है, इसको हमको सेलेक्ट करना है, फिर सेलेक्ट करना है जो भी साइज़ हमें चाहिए वहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो बना है, यहाँ से हम साइज़ को चूज़ कर सकते हैं, स्मॉल, मीडियम, ये 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जो भी हमें चाहिए वो हम यहाँ से चूज़ करेंगे। इस तरीके से हमारा जो भी ऐप है वो रीसाइज हो जाएगा। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी 2। So here you have to explore all the options of resize and resize all the live tiles to medium size। आपको जो भी options है उन्हें देखना है, explore करना है, और जो भी live tiles है उन्हें medium size में resize करना है। Next you have to find out the names of at least 5 applications। ऐसे 5 applications के नाम ढूंढने हैं जो कि आपके कंप्यूटर पे हैं। कैसे, using all program option in the start menu। सो ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पे जाएंगे और स्टार्ट मेन्यू में हम देखेंगे कौन से 5 एप्लीकेशन जो है हमारे कंप्यूटर पे अवेलेबल हैं। सो दीज 2 क्वेश्चंस यू हैव टू डू योरसेल्फ। नेक्स्ट कम्स डिस्प्लेइंग मल्टीपल विंडोज एट अ टाइम। कैसे हम मल्टीपल विंडोज को एक समय पे डिस्प्ले कर सकते हैं। सो विंडोज 10 में वी कैन डिस्प्ले मल्टीपल एप्लीकेशन साइड बाय साइड। एक साथ हम कई सारे एप्लीकेशंस को यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं कि हम कैसे मल्टीपल विंडोज़ को ओपन कर सकते हैं एक समय पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ओपन करना होगा वर्ड 2016 को एंड पावर पॉइंट 2016 को। तो ये 2 ऑप्शंस हम ओपन कर रहे हैं, दोनों को एक साथ हम खोलने की कोशिश करेंगे। नाउ वी हैव टू राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द ब्लैंक पोर्शन ऑफ द टास्क बार। जो ब्लैंक पोर्शन है हमारे टास्क बार का, उसमें हमें कहीं पे भी जाकर राइट क्लिक करना है, फिर हमें क्लिक करना है शो विंडोज साइड बाय साइड ऑप्शन पे फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। वहाँ पे एक शॉर्टकट मेन्यू में ये ऑप्शन दिखेगा, उस पर हमें क्लिक करना है। बोथ द एप्लीकेशन विंडोज विल बी डिस्प्लेड साइड बाय साइड ऑन द स्क्रीन। दोनों ही जो एप्लीकेशन हैं वो साइड बाय साइड हमारे स्क्रीन पे दिखने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों स्क्रीन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। नेक्स्ट कस्टमाइजिंग डेस्कटॉप। कैसे हम डेस्कटॉप को कस्टमाइज कर सकते हैं। सो विंडोज 10 जो है क्या करते हैं, काफ़ी आसान बना देता है हमारे जो डेस्कटॉप है उसके लुक को, उसके फीलिंग को कस्टमाइज करना। सो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कस्टमाइज करने के लिए डेस्कटॉप को। सबसे पहले हमें राइट क्लिक करना है कहीं पे भी हमारे डेस्कटॉप के, जैसे कि हमें ज़रूरत हो। नेक्स्ट अब हमें जाना है पर्सनलाइज ऑप्शन पे। कहाँ मिलेगा ये हमें, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा हमारे सेटिंग्स में, उसमें हमें जाना है। तो ये देख सकते हैं पर्सनलाइज ऑप्शन है। नाउ यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप सेटिंग खुला हुआ है पर्सनलाइज ऑप्शन में, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं फॉन्ट को, कलर स्कीम को, थीम्स को, बैकग्राउंड को, हमारे कंप्यूटर के जैसे भी हमें चाहिए। नेक्स्ट चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब डेस्कटॉप है पर उसके बैकग्राउंड को हमें चेंज करना है। सो वी कैन चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अपीयरेंस को चेंज करने के लिए हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। द बैकग्राउंड इमेज दैट अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द वॉलपेपर। जो बैकग्राउंड इमेज हमारे डेस्कटॉप पे दिखती है उसे हम वॉलपेपर
कहते हैं. So what are the steps to change the desktop background? First we have to right click on the desktop. हमें desktop पे right click करना होगा, फिर जाना होगा personalize option पे. वहाँ से जाके हमें background option को choose करना है. तो personalize में आप देख सकते हैं background option दिख रहा है, इसको choose करना है. यहाँ पे आपको drop down arrow दिखेगा background का. यहाँ से आप बहुत सारे pictures दिखेंगे, जो भी हमें चाहिए पिक्चर वो यहाँ से हम चूज कर सकते हैं. साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं पिक्चर की एंड फिर चूज अ फिट ऑप्शन, इसको भी हम चूज कर सकते हैं तो पिक्चर जो है फिट हो जाएगी हमारे डेस्कटॉप पे. नेक्स्ट टेक टिप्स इज वी कैन ऑल्सो चूज अ ब्राउज ऑप्शन. हम ब्राउज ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं टू सेलेक्ट द पिक्चर स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर, ताकि हम जो कंप्यूटर पर पिक्चर उससे हम सेलेक्ट कर सकें. नेक्स्ट कम्स चेंजिंग द कलर स्कीम. कैसे अब हमें जो कलर स्कीम है उसे चेंज करना है. सो हियर आर द स्टेप्स टू चेंज द कलर स्कीम. सबसे पहले हमें राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे एंड सेलेक्ट करना है पर्सनलाइज ऑप्शन को. फिर हमें क्लिक करना है कलर ऑप्शन पे, ये है हमारा कलर ऑप्शन. फिर हमें क्या करना है, हमें स्क्रॉल डाउन करना है कलर पैलेट पे और जो भी कलर हमें चाहिए यहाँ से हम उसको चूज कर लेंगे. जो भी सिलेक्टेड कलर है वो अब हमारे स्क्रीन पे अप्लाई हो जाएगा. तो ऐसे जो है हम क्या कर सकते हैं, कलर स्कीम को भी चेंज कर सकते हैं. ये आप देख सकते हैं करंट थीम दिख रहा है यहाँ पे एंड चेंज थीम, दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं. नेक्स्ट चेंजिंग द थीम. अब थीम को कैसे चेंज करना है हमें. सो दीज आर द स्टेप्स दैट आर टू बी फॉलोड. सबसे पहले हमें राइट क्लिक करना है हमारे डेस्कटॉप पे एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनलाइज ऑप्शन है, उसको चूज करना है. फिर हमें थीम्स ऑप्शन को चूज करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, सेलेक्ट करना है जो भी थीम हमें चाहिए एंड जो भी सिलेक्टेड थीम है वो अब अप्लाई हो जाएगी हमारे स्क्रीन पे. सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज द थीम. Let's move on to activity 3. So here third activity is also given. Here you have to change the desktop color scheme and theme of the computer to make it more attractive as per our choice. तो ये जो है आंसर आपको खुद करना है. You have to do this. Let's move on to reboot. So the first GUI version of Windows was introduced in 1995. जो पहला GUI version था Windows का वो 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड इसे हम Windows 95 कहते हैं. Cortana क्या है, ये एक नया फीचर है Windows 10 का और ये एक वर्चुअल असिस्टेंट है जैसे कि Siri है, Google है, Alexa है और भी बहुत सारे. Windows 10 देता है हमें एक फीचर जिसमें हम मल्टीपल वर्चुअल डेस्कटॉप्स को जो है इजीली जो है एक्सेस कर सकते हैं एंड इज एन इजी टास्क व्यू टू स्विच बिटवीन टैब्स. हम इजीली जो है स्विच कर सकते हैं टैब्स के बीच में. स्नैप असिस्ट इज अ न्यू फीचर. स्नैप असिस्ट एक नया फीचर है जो कि क्या करता है, हेल्प करता है यूजर को रिकॉग्नाइज करने में स्क्रीन स्पेस को एंड उसे जो है और भी ज़्यादा बेस्ट बनाता है. हम बहुत ही बेस्ट तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं. सर्च बॉक्स जो है हेल्प करता है हमें ब्राउज करने में, दोनों ही है हमारे कंप्यूटर और इंटरनेट से. आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर्स. आइकन जो है छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं फाइल्स को, फोल्डर्स को और एप्स को. सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज व्हिच इज लेट्स गो. हियर ए एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. सो हियर द फर्स्ट वन इज the horizontal bar located at the bottom of the desktop is called taskbar. Second, the start menu is the starting point to view all the applications stored on your computer. Third one, an operating system provides an interface between the user and the hardware of the computer. Fourth one, a computer cannot work without an operating system in it. And the fifth one is Cortana is a virtual assistant of Windows 10. Next, let's move on to B exercise which is right, true or false. Here the first one is the desktop is not the main screen of our computer. False. Second, an icon represents a file, folder or a program. True. Third, the GUI lets us use the mouse to click icons, buttons and menus. True. The start button allows the user to access the installed applications easily. True. And the fifth one is search box allows us browsing through the computer. Yes, this one is also true.
So these are the answers to true or false. Now let's quickly move on to C exercise, which is take the right answer. So here first one is dash are small pictures that represent files, folders and apps. Icons, desktop, wallpaper, none of these. Icons is the correct answer. Second, the first screen of a computer is called the shortcut folder desktop taskbar. Correct answer is desktop. Third one, which option do we click to change the desktop background? Personalize, desktop, wallpaper, all of above. Correct answer is personalize. Fourth one, which of the following is the latest version of Windows operating system? Windows 7, Windows 10, Windows 11, none of these. Correct answer is Windows 11. Fifth one, which of the following holds the clock and other options on the desktop? Icons, taskbar, wallpaper, none of these. Correct answer is taskbar. So these are the answers that you have to write down and you have to do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.